Last class we had learnt about specific heat, right? Molar specific heat, thermal capacity, water equivalent, molar specific heat at constant volume, and molar specific heat at constant pressure. Yes or no? Today we'll study about calorimetry. So let's know about what is principle of calorimetry. What is principle of, right? Principle of calorimetry. Principle of calorimetry, right? So student, let you are mixing two liquids. Two liquids means let I have taken one liquid here, right? This liquid is having mass is m1. Let the specific heat of the liquid is s1. Let s is specific heat, right? And this is let the temperature is at theta 1. For example, let I'm saying this is at 20 degrees centigrade, right? For example, let another liquid I have taken here. This liquid is a specific heat having s2, mass m2, and temperature theta 2. Let 40 degrees centigrade. Student, I mixed them both. Getting now? I mixed this liquid and I mixed this liquid. I poured them. So what will happen? This temperature of this liquid is less. Liquid 1. Yes or no? Temperature of liquid 2 is more. So what will happen? 20 degrees Celsius will keep on increasing and 40 degrees Celsius will keep on decreasing. Yes or no? This liquid will gain some heat, this liquid will lose some heat. So finally they will come to a point. Let in some time temperature become 21. So its temperature will become 39. Its temperature become 22. Its temperature become 38. Yes or no? Its temperature becomes 23. Its temperature becomes 37. So like that it will keep on increasing and it will keep on decreasing. Getting the students? How long? As long as they have not reached a common temperature. Getting my point or not? Yes, sir. So that means the principle of calorimetry says that when two bodies are different temperature are mixed, दो अलग-अलग liquid या अलग-अलग body को हमने mix किए, तो heat will be transferred from body of higher temperature to the body at lower temperature. Is that clear? कब तक heat transfer होता रहेगा? Till both acquires the same temperature. And the body at the higher temperature releases heat while the body at the lower temperature absorbs the heat. Understood all? Yes, Understood sir. all? Yes. Yes. स्टूडेंट ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में हमने ये पढ़े, ठीक है? And the body at the higher temperature releases heat while the body at the lower temperature absorbs it. तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस करेंगे कि जितना हीट हायर टेम्परेचर वाला बॉडी लॉस करेगा उतना ही हीट लोअर टेम्परेचर में जो बॉडी था वो गेन करेगा. गेटिंग और नॉट? So this is heat lost, right? The final thing is that heat lost is equal to heat gain. Heat lost is equal to heat gain, right? So that is principle of calorimetry. This is what? That is principle of calorimetry. That is principle of calorimetry. तो फाइनली होता क्या है? टोटल हीट ना कहीं चला नहीं जाता है, वो कंजर्व रहता है. कहीं से अगर हीट लूज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वही हीट किसी ना किसी पे जा रहा है कि कोई ना कोई और एक बॉडी उसी हीट को गेन कर रहा होगा. अगर कोई बॉडी नहीं है तो टोटल सिस्टम को हम कंसीडर कर देंगे. अगर एक बॉडी कूल हो रहा है मतलब वो सराउंडिंग्स को कुछ टेम्परेचर दे रहा है, राइट? सो दिस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री रिप्रेजेंट्स, राइट, दिस रिप्रेजेंट्स law of conservation of heat energy, right? Law of conservation of heat energy, correct? This is law of conservation of heat energy. Is that okay? अभी उसके साथ और एक चीज ऐड करते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन पे ये मिलेगा, जो कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, राइट? व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल? जैसे कल हमने वाटर इक्विवेलेंट पढ़े थे, सो दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, राइट? ठीक है स्टूडेंट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज भी आप यहाँ पर हमने एक चीज भी ले सकते हैं कि वो जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर हमने लिक्विड को मिला दिए तो थीटा मिक्स जो होगा वो कितना होगा, मतलब मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर हुआ, हीट लूज हो गया, हीट गेन हो गया, तो फाइनली क्या है, 20 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा, मतलब इतना था, इतना हो गया अभी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना यहाँ पर होगा, थीटा मिक्स माइनस थीटा 1 हो जाएगा, राइट? और इसका लेकिन क्या हो जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा मिक्स हो जाएगा ना.
गेटिंग और नॉट? Yes. इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर घट रहा है, तो 40 से घट रहा है, ये 20 से बढ़ रहा है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर जो होगा, मान के वो आके 35 में रुक गए, तो मतलब 20 15 बढ़ गया, या फिर 20 30 पे आके रुक गया और 40 30 पे आके पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब ये जो हीट लॉस्ट और हीट गेन वाला चीज ये जो हमने देखे, लेट्स सी बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, एक चीज थोड़ा इसको बता देता हूँ, मिक्सचर टेम्परेचर। तो पहला वाला जो हीट लॉस किया, मतलब हीट मतलब Q इज इक्वल टू, आपको क्या बताया गया था कल, mc डेल्टा थीटा, s इज स्पेसिफिक हीट हमने यहाँ पर लिए, कल C लिए थे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ms डेल्टा थीटा, दिस इज हीट ना। तो व्हाट इज द हीट लॉस्ट बाय द फर्स्ट लिक्विड, दैट इज Q इज इक्वल टू, मास तो सेम रहा, स्पेसिफिक हीट भी सेम रहा, बट टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हुआ ना सर, थीटा मिक्स माइनस थीटा 1 हो गया। इज दैट क्लियर? यस और नो? दिस इज द, Yes, sir. दिस इज द हीट गेन्ड बाय फर्स्ट लिक्विड, राइट? और हीट लॉस्ट कितना हो जाएगा, नहीं हाँ, हीट लॉस्ट कितना हो जाएगा, कितना हीट लॉस्ट किया सेकेंड लिक्विड ने ना सर, वही m ले लिए, s ले लिए, मतलब m1 ले लेता हूँ, स्पेसिफिक हीट s1, दूसरा लिक्विड m2 s2 ले लेता हूँ, सो दैट इज सर थीटा 2 माइनस थीटा मिक्स। समझ पे आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं? Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा, कल बताया था। एक में लिक्विड ने हीट दे दिया, कितना दे दिया, थीटा 2 मतलब 40 माइनस जो मिक्सचर का टेम्परेचर है। एक में क्या किया, हीट गेन किया, हीट लॉस किया, बट दोनों सेम है ना, तो Q लॉस इज इक्वल टू Q गेन, करेक्ट और नॉट? Yes. स्टूडेंट, तो अगर वैल्यू पुट कर देंगे m2 s2 थीटा 2 माइनस थीटा मिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर गेन में डाल दिए m1 s1 थीटा मिक्स माइनस थीटा 1, करेक्ट? तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना, तो मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा मिक्सचर जो आएगा वो इतना आ जाएगा, m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 s1 प्लस m2 s2। अंडरस्टूड दिस फार्मूला? और कैसे ये फार्मूला Yes, डिराइव sir. हुआ, समझ पे आया? Yes, sir. अगर कहीं पे उसने पूछा कि हाँ यार सर बात तो सही है, आपने निकाल दिया थीटा मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, बट जब दो लिक्विड को मैंने मिला दिया, डू यू फील कि उसका स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होगा? वो तो अभी एक लिक्विड नहीं रहा ना, मैंने वाटर को लेके केरोसिन के साथ मिला दिया किसी भी तरह, तो दोनों तो अभी एक लिक्विड है ना, उनका सारे पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो अभी अगर कहीं पे थीटा मिक्सचर ना पूछ के उसने पूछा स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर, अगर कहीं कहीं पे पूछ लिया, तो वहां पर हम स्पेसिफिक हीट एक नया ले लेंगे, राइट? स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर, specific heat of the mixture, right? So that is C, specific heat को S ले लेते हैं, यहाँ पर S लिया है, S mix क्या हो जाएगा, that is M1 S1 plus M2 S2 divided by M1 plus M2. Just keep these two formulas in mind. In the very next assignment or in the test, you'll be getting the application of these formulas. Up to this all clear? Yes. So next in continuation, let's see change of state and latent heat. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपने ये देखे कि Q इज इक्वल टू m s डेल्टा थीटा, m इज मास, s इज स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर, करेक्ट? अंडरस्टूड और नॉट? हमने क्या किए, मैंने एक कंटेनर पे बेटा आइस ले लिया, क्या लिया मैंने, एक आइस का पीस मैंने ले लिया, ठीक है? और आइस जो था मान के चलो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। जब मैं इसको हीट करवाऊंगा, मैंने इसको बर्नर से हीट करवाया, राइट? तो ये मेल्ट कर जाएगा ना, मेल्ट करेगा कि नहीं स्टूडेंट? Yes. तो मेल्ट करके मैंने देखा कि इतना पानी बन गया और पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तो डेट मीन्स मैंने, अगर मैंने पूछा कि बेटा Q क्या है, तो आप क्या करोगे सर? Q इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। बेटा डेल्टा थीटा तो कुछ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर भी डेल्टा थीटा 0 था, यहाँ पर भी 0 है, तो मतलब ऐसा ऐसा मतलब ऐसा है क्या कि कुछ हीट हमने नहीं दिया है? डू यू थिंक कि हमने कुछ भी हीट नहीं दिया? आर यू लिसनिंग ऑल? मैंने 1 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, मैंने इसको 1 ग्राम पानी में बदल दिया, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके लिए मुझे कुछ हीट देना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. तो वो हीट गया किधर? टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, तो वो हीट, व्हाट इज दैट हीट? सो ये क्या था, ये जो आइस था ये सॉलिड में था, ये किस पे आ गया? लिक्विड पे। तो वही एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट ने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। गेटिंग नाउ ऑल? Yes, sir. Yes. And you know
3 फेजेस होते हैं, देयर आर 3 पेजेस ऑफ मैटर. क्या क्या है? सॉलिड, Liquid and gas. these are the 3 phases. These are the 3 phases of matter. These are the 3 phases of matter. Okay. And energy must be added to change its state from solid to liquid. Solid to liquid मतलब करना क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं ना. सॉलिड को मुझे लिक्विड में Yes. कन्वर्ट करना है, उसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, राइट? नहीं तो फिर लिक्विड टू गैस मन के हिसाब से तो नहीं होगा. मैंने लिक्विड रख दिया और वो गैस हो गया. गेटिंग ना स्टूडेंट्स? या नहीं तो फिर लिक्विड टू गैस. लिक्विड टू गैस को क्या कहते हैं? बॉयल, राइट और नॉट? सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करो या लिक्विड को गर्म पानी को गैस में कन्वर्ट करो, स्टीम में. यस सर नो? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एनर्जी मस्ट बी एडेड. इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? एनर्जी मस्ट बी एडेड. हीट के फॉर्म पे हम एनर्जी देते हैं. एनर्जी मस्ट बी एडेड. गेटिंग ऑल स्टूडेंट्स? गेटिंग ना? Yes. अच्छा, नेक्स्ट. एनर्जी अगर मैं गैस को लिक्विड बनाऊं कंडेंस करने के लिए, मतलब अगर मैं गैस को फिर लिक्विड में करूं तो हमें ठंडा करना पड़ता है ना. गैस टू लिक्विड मतलब क्या कहते हैं उसको? कंडेंस कहते हैं ना. Yes. ये तो फिर मुझे लिक्विड टू सॉलिड करना है. आई वांट टू मेक लिक्विड टू सॉलिड. तो मुझे क्या करना होगा? फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीज हीट, राइट? फ्रीज. तो इस पे क्या करना पड़ेगा? इस पे एनर्जी देना पड़ेगा क्या? इस पे एनर्जी रिमूव करना पड़ेगा. एनर्जी मस्ट बी रिमूव्ड. गेटिंग माय पॉइंट ना स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. एनर्जी मस्ट बी रिमूव्ड, राइट? सो कहीं पे मतलब एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड टू कॉज सॉलिड टू लिक्विड. 1 kg ऑफ आइस को मैंने 1 kg ऑफ वाटर पे बदल दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के. उसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. सही है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मैंने सॉलिड को लिक्विड पे कन्वर्ट किया. जब सॉलिड को लिक्विड पे कन्वर्ट किया तो दैट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है, तो चलो इसी के कारण हम देखेंगे. तो यहाँ पर आता है चेंज इन स्टेट और लैटेंट हीट की इंपॉर्टेंस. तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि लैटेंट हीट क्या होता है. व्हाट इज मीन बाय लैटेंट हीट? लैटेंट मतलब हिडन. क्या है स्टूडेंट लैटेंट का मतलब? हिडन. तो वहां पर आपको तो दिख नहीं रहा है, 0 डिग्री था 0 डिग्री है, बट स्टेट चेंज हो गया ना. लैटेंट का मतलब क्या? हिडन, राइट? स्टूडेंट्स गेटिंग और नॉट? तो लैटेंट Yes, sir. लैटेंट हीट का 2 चीज है. एक है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड? एल एफ लिख Yes, sir. सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से. अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है. फ्यूजन मतलब क्या है? सॉलिड टू लिक्विड. वेपोराइजेशन मतलब क्या है? लिक्विड टू गैस. अंडरस्टूड? मैंने मान के बताया, मान के चलो मैंने डायरेक्टली एग्जांपल देके बताता हूँ. मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? कोई भी एक चीजों का अगर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मुझे जितना हीट देना पड़ेगा और क्यू वहां पर जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट देना पड़ेगा. मोर मास we have to get more mass, more mass we have to get more heat. Yes or no? It's more mass and we have to get more heat. So that is Q is equal to ml. So this L is latent heat. L is what? Latent heat. इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? L is equal to Q by M लिख सकते हैं ना? That is कैलोरी पर ग्राम लिख सकते हैं ना CGS पे, है कि नहीं? और SI पे क्या लिखेंगे? किलो कैलोरी पर kg. Getting ना? This is the unit. This is what? Unit. Students understood or not? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी 2 चीज बताना चाहूंगा कि मान के चलो मैंने बताया कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. ठीक है, मैंने बताया L
latent heat of ice मतलब क्या है? That is nothing but latent heat of fusion ना, है कि नहीं? Yes. Students understanding ना? Yes. So that is equal to, let मैंने बताया 80 कैलोरी पर ग्राम. क्या बताया मैंने? इसका मतलब क्या है? Latent heat of fusion of ice is 80 कैलोरी पर ग्राम. What does it mean? It means कि if मतलब that means 80 calorie heat is required. It means 80 calorie heat is required. 80 calorie heat is required to convert 1 gram of ice to 1 gram of water. Students understood na? Yes, sir. Gram of ice to 1 gram of water. Understood? तो मतलब आइस को लिक्विड पे कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम मुझे कितना हीट देना पड़ेगा? 80 कैलोरी. Students understood ना? Yes. Understood or not? और इसको कैलोरी और जूल पर केजी भी कहते हैं. That is also जूल पर केजी ऐसा यूनिट पे, राइट? है ना? Understood? Yes. नेक्स्ट मैंने बताया कि latent heat of vaporization, L vaporization लिखा है. उसका मतलब क्या है? 540 कैलोरी पर ग्राम. इसका मतलब क्या है? वेपोराइजेशन मतलब मैं वाटर की बात कर रहा हूँ. किसका बात कर रहा हूँ मैं? वाटर. अलग अलग लिक्विड अगर होगा तो वो वैल्यू दिया रहेगा आपको. दैट मीन्स 540 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. 540 कैलोरी ऑफ हीट इज 540 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. किस लिए चाहिए? टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर टू स्टीम. अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स? 1 gram of water to steam. Proof getting or not? 540 calorie of heat is required to convert 1 gram of water to steam. Students understood? मुझे 1 ग्राम पानी दिया गया और आपको बताया गया भैया उसको कन्वर्ट करके ना आप 1 ग्राम बना दो, 1 ग्राम स्टीम. तो मुझे कितना हीट देना पड़ेगा? 540. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ऑल? Yes, sir. और हमेशा ये वैल्यू कैलोरी पर ग्राम पे नहीं दिया रहेगा. कभी कभी वो मतलब इसमें भी दिया जा सकता है. किस पे? मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अगर मैं आइस के हिसाब से कभी कभी आइस में भी दिया, मतलब इस तरह दिया जाता है जूल पर केजी में. तो कैलोरी को अगर मैं जूल में किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ डिवाइड करना है, राइट? है कि नहीं? मतलब मैंने आपको बताया कि लेट मान के चलो 80 कैलोरी पर ग्राम मैंने आपको बताया है ना. कैलोरी हाउ मच जूल? कैन यू से 1 कैलोरी हाउ मच जूल? 4.2 ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? Yes. कितना जूल हो जाएगा ना सर? 80 इंटू 4.2 कर दीजिए तो ऊपर में जूल आ जाएगा. और ग्राम को मुझे केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, राइट? और 1 ग्राम इज हाउ मच केजी? 10⁻³ केजी ना, है कि नहीं? Yes. तो ये ऊपर जाएगा और 80 को मैं 420 में मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली सॉल्व करके ये आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁵ जूल पर केजी. ये वैल्यू भी आप याद रख लो. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सीजीएस का वैल्यू जैसे 80 मैंने बताया उसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो इस तरह आ जाएगा ना वैल्यू. अंडरस्टूड और नॉट? स्टूडेंट्स गेटिंग ना? इस तरह मैंने आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या वैल्यू बताया मैंने अभी? आर यू लिसनिंग और नॉट? 540 calorie per 540 कैलोरी पर ग्राम. सो दैट इज 540 इंटू कैलोरी में कितना आएगा? 4.2 मल्टीप्लाई कर दिए 2/10. 10⁻³ कर देंगे तो पूरा सॉल्व करके जो ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻6 जूल पर केजी. अंडरस्टूड ऑल? कभी कभी वैल्यू इस तरह भी दिया रहेगा, राइट? यस सर नो? Yes, sir. अंडरस्टूड ऑल? समझे ना शुभेंदु? ऑल अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. ठीक है. हाँ, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूँ फिर आपको पूरा चीज समझ पे आ जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है. एक एग्जाम्पल्स लेते हैं. अभी एग्जाम्पल को ध्यान से देखो.
मैंने आपको पूछा कि मेरे पास आइस है 10 ग्राम का, कितना ग्राम का बेटा? 10 ग्राम का, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। सुन रहे हो ना सब? मेरे पास क्या है? आइस। कितने ग्राम का? 10 ग्राम। 10 ग्राम का। -10 ग्राम का, कितना का? -10 ग्राम का। मुझे उसको कन्वर्ट करना है स्टीम पे। किस पे कन्वर्ट करना है स्टूडेंट? Steam. मुझे 10 ग्राम स्टीम पे कन्वर्ट करना है, और वो भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ पे आया ना? Yes. तो इतना को मुझे कन्वर्ट करना है। आई वांट टू कन्वर्ट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड? हाउ मच हीट इज 110 रिक्वायर्ड? क्या लगता है आपको, कैसे करेंगे इसको? एनी आइडिया हाउ टू कैलकुलेट दिस वन? क्या आपको लगता है? सर Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। तो सर एम एस किसका डालूं? आइस का या वाटर का? तो इस तरह से नहीं कर पाएंगे हम। इट्स नॉट लाइक दैट इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन। तो इसको स्टेप वाइज करना पड़ेगा स्टूडेंट। लेट मी टू से स्टेप वाइज क्या करना पड़ेगा। तो हमने कितने ग्राम का लिए? 10 ग्राम का। क्या लिए? आइस। टेम्परेचर कितने में था? -10 degree. -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। जब मैं इसको हीट दे दूंगा, मैंने इसको कुछ हीट दिया, राइट? Q1। पहले मुझे उसको 10 ग्राम आइस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ना स्टूडेंट्स? Yes. फिर मुझे उसको हीट देना है। अभी आइस को मेल्ट करना है मुझे। वही 10 ग्राम ऑफ वाटर करना पड़ेगा। कितने में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। समझ में आ रहा है ना? उसके लिए कुछ हीट देना पड़ेगा, राइट? अंडरस्टैंडिंग और नॉट स्टूडेंट्स? Yes, sir. फिर मुझे क्या करना पड़ेगा ना सर? अभी आप एक काम कीजिए, 10 ग्राम ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कीजिए पहले। अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स? उसके लिए कुछ हीट देना पड़ेगा Q3। समझ पे आ रहा है? तो Yes. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे स्टेप वाइज ना सर? अभी 10 ग्राम स्टीम आप बनाइए, और वो भी 100 ग्राम पे। समझ पे आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पर -10 था, 0 पे लाया, तो टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब क्या डालेंगे? एम स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू डेल्टा थीटा। समझ पे आ रहा है ना स्टूडेंट्स? Yes. गेटिंग और नॉट? Yes, sir. सबको समझ पे आ रहा है? Yes, sir. तो क्वेश्चन पे यहाँ पर एम की जगह पे हमने 10 ग्राम डाल दिए। ठीक है, 10 ग्राम, मतलब ग्राम तो नहीं लिखेंगे, 10 लिख दिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्वेश्चन पे दिया रहेगा 0.5 समथिंग, फॉर एग्जांपल 0.5 अराउंड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, इनटू डेल्टा थीटा कितना है? 0 टू -10 आया, तो 0 माइनस ऑफ -10 मतलब 0 + 10 ना। तो ये हीट मिल जाएगा कि नहीं? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Q1 मिला? ऑल आर गेटिंग और नॉट? बट अभी यहाँ पर Q2 निकालेंगे। Q2 में ये तो 0 से 0 आ रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो ms डेल्टा थीटा नहीं डालेंगे ना। क्या डालेंगे? m लैटेंट हीट ऑफ आइस डालेंगे। समझ पे आ रहा है? 10 × 80, 800 कैलोरी चाहिए मुझे। अंडरस्टूड ऑल? Yes. समझ पे आया? फिर यहाँ पर Q3 डालेंगे। Q3 कितना जरूरत पड़ेगी ना सर? वही m स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लीजिए इनटू डेल्टा थीटा कीजिए। हाँ बेटा, m 10 ले लेता हूँ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 और टेम्परेचर 100, तो कितना हो गया? 1000 कैलोरी। अंडरस्टैंडिंग ना? जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहां पर क्या डालेंगे? ms डेल्टा थीटा। और जहां पर स्टेट चेंज हो रहा है वहां पर क्या डालेंगे? Q इज इक्वल टू ml। अंडरस्टूड और नॉट? और अभी यहाँ पर देखो 100 से 100 तक आ रहा है, बट स्टेट चेंज हो रहा है वाटर टू स्टीम, राइट? तो वहां पर क्या डालेंगे? UL वेपोराइजेशन डालेंगे। ऑल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. 10 into 540, that is how much? 5400 कैलोरी। तो टोटल हीट जो है क्या करेंगे? Q टोटल इज इक्वल टू क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? Q1 + Q2 + Q3 + Q4। अंडरस्टूड? ये पूरा क्वेश्चन का मैंने बता दिया। अगर कहीं पे उसने 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, कुछ भी स्टेप में क्वेश्चन पूछ सकता है। सो किस तरह हमें उसको कैलकुलेट करना होगा। समझ पे आया? All understood? Ask me the doubt where you are not able to understand.